This is Professor Neetu Ghai from Defence Services Academy, and once again I welcome you all in your own English class, that is English with Neetu ma'am. Okay bacha, we have started topic noun, and as I told you कि we will do everything step by step. तो as I have given you the basic concept of noun, types of noun, countable and uncountable noun, so today I am going to start a new topic related to noun, and that is compound nouns. Compound nouns, अरे compound तो हमने सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़े हैं, अब इंग्लिश ग्रामर में भी केमिस्ट्री कैसे आ गई? No, it's like a compound. That means compound means mixture, दो का मिक्सचर. तो नाउन में कैसे कंपाउंड नाउन होते हैं और कंपाउंड नाउन के सिंगुलर प्लूरल कैसे होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन माय टुडेज लेक्चर. सो स्टे ट्यून्ड for compound noun. So let's begin it. So students, as I have told you, today's topic is compound nouns. So what is today's topic? Compound nouns. अब compound nouns होते क्या हैं? Nouns हमें पता है. Noun is a name of place, person, animal or thing. और noun के types भी पता है. Material noun, abstract noun, collective noun, proper noun, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे नाउन्स होते हैं. तो ये कंपाउंड नाउन आया कहाँ से? Compound noun आया, that means whenever two nouns are joined together to make a different noun, that is compound noun. See, compound nouns में you can join noun plus noun, you can join adjective plus noun, you can join verb plus noun. All the three can make a new noun. For example, chief minister. Chief is an adjective, chief quality है, minister noun है, तो chief minister ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन. बास्केट बॉल, बास्केट नाउन, बॉल अगेन नाउन, तो बास्केट प्लस बॉल इज इक्वल्स टू बास्केटबॉल. तो बास्केटबॉल कंपाउंड नाउन है जो टू नाउन्स को ऐड करके बना है, एंड दिस आई एम गोइंग टू टीच यू इन कंपाउंड नाउन. सी, कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इंक्लूड्स टू और मोर देन टू वर्ड्स. By mixing them, it becomes a single noun. ओके, अब बास्केट का मीनिंग अलग, बॉल का मीनिंग अलग, दो नाउन्स को ऐड करके जब हम एक नया वर्ड बना रहे हैं बास्केटबॉल, तो उसका मीनिंग अलग. ओके, तो जब दो नाउन्स या दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, उसके बाद जो नया वर्ड बन रहा है वो कंपाउंड नाउन है. सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दैट. सी, बाथरूम, बाथ इज अ वर्ब, room is noun and it becomes a compound noun, bathroom. Chopstick, do you know chopsticks to eat the Chinese? Chopstick पता है? तो chop again a verb, stick is noun, chopstick. Homework, homework again a compound noun. Seashell, see, sea is a noun, shell is a noun, दो noun मिलके compound noun. Home is a noun, work is a noun, noun plus noun, compound noun. तो as I have told you, compound noun बनाने के लिए आप दो noun यूज कर सकते हैं, एक verb और एक noun यूज कर सकते हैं. verb और noun कैसे यूज होगा? bath verb है, room noun है, bathroom. swimming pool, swimming verb है, pool noun है, तो swimming plus pool is equals to swimming pool. that means verb plus noun भी compound noun होता है, adjective plus noun भी compound noun होता है. See, coast line, this is noun plus noun, coast और line. See other example, password, password is equals to password. notebook, note is a verb, note is a noun, book is a noun, notebook. homework, marketplace, cowboy, cup, bird. See, cup एक noun है, board एक noun है, तो cup plus board it become cupboard. ठीक है, अब कभी भी ये मत सोचना कि ये नाउन जो कंपाउंड नाउन मिला है इनके मीनिंग से इसका कोई रिलेशन है. नो, कप अलग है, बोर्ड अलग है, दोनों नाउन का मीनिंग अलग अलग है, बट जब कप प्लस बोर्ड दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं इट विल बिकम कबर्ड. एयर कंडीशनर, एयर इज अ नाउन, कंडीशनर इज अ नाउन, noun plus noun, compound noun. air raid, alarm clock, assembly line. So these are the words which comes into the categories of compound noun. सबसे पहले compound noun समझना,
ज़रूरी है, उसके बाद उसके ऊपर क्या रूल्स होते हैं वो समझना ज़रूरी है. Then I'll teach you the error based on the usage of compound nouns. So let's see some more about compound nouns. So just to recall, we can make a compound noun by adding noun plus noun. We can adding compound noun by adding adjective plus noun. We can make compound noun by adding verb plus noun. So these were the some basic forms of compound noun. So as I have promised you, we will go step by step. ठीक है बच्चा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे, एकदम डिफिकल्ट नहीं. अगर आपको कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तभी इसके आगे हम समझ पाएंगे कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं. और जिस टॉपिक पे एरर आते हैं एग्जाम में वो है प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन. तो प्लूरल से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कंपाउंड नाउन के किस वर्ड में एस लगेगा तो उसका प्लूरल बनेगा. ओके, चेक इट आउट. नाउ सी, सिंगुलर में अगर हम लिख रहे हैं हाउस वाइफ, हाउस वाइफ अगेन अ कंपाउंड नाउन. अब कंपाउंड नाउन में हाउस वाइफ, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, ये सिंगुलर है. इसका प्लूरल बना रहे हैं तो आपको पता है वाइफ का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो वो बन गया वाइफ्स. तो हमने वाइफ्स को प्लूरल के फॉर्म में चेंज किया, हाउस को कुछ भी नहीं किया. अब टूथ ब्रश, ब्रश का हो गया ब्रशेस. बॉय स्काउट, स्काउट का हो गया स्काउट्स. मेड सर्वेंट, सर्वेंट का हो गया सर्वेंट. तो क्या सिर्फ लास्ट वर्ड में ही एस लगाकर हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना सकते हैं? क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये सिंपल वर्ड्स हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हमने लास्ट में एस लगा दिया या ई एस लगा दिया तो उन वर्ड का प्लूरल बन जाएगा. नो, दिस इज द सिंपल थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट बिट ट्रिकी थिंग. और वो कैसे होगा? चेक इट आउट. अब इजी थिंग ओवर, ट्रिकी थिंग अब स्टार्ट. सी, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में ये सिंगुलर, ये प्लूरल. हम बात कर रहे हैं ब्रदर इन लॉ. अब ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई भी वर्ड हो. यहां पर अगर सिस्टर इन लॉ लिखा है या डॉटर इन लॉ लिखा है, कोई भी वर्ड इससे मिलता जुलता. सो दिस इज कंपाउंड नाउन मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स. ठीक है, ये कंपाउंड नाउन है. नाउन, नाउन, प्रेपोजिशन. तो मैंने आपको बताया है कंपाउंड नाउन 2 या 2 से ज्यादा वर्ड से बनता है. अब अगर मुझे ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है तो क्या मैं यहाँ पे एस लगाकर इसका प्लूरल बना सकती हूँ? नो, नो, दिस इज एरर. ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनेगा तो वो ब्रदर्स में एस लगेगा. मेन वर्ड, रूट वर्ड में हम एस लगा के कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं. एंड आई एम एश्योरिंग यू वन थिंग, एनडीए एग्जाम में एवरी ईयर 100% इस रूल पे सेंटेंस आता ही है. 99% भी नहीं, 100%, बिकॉज दिस इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर द पेपर सेटर. क्वेश्चन पेपर में आपको हर बार इस रूल पे सेंटेंस मिलेगा ही. तो ब्रदर इन लॉ का अगर प्लूरल बनेगा तो वो ब्रदर्स इन लॉ बनेगा, ब्रदर इन लॉज नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 ब्रदर इन लॉज. आपको एग्जाम में सेंटेंस ऐसे देंगे और आपको पूछा जाएगा पिक आउट द एरर. अब आप बोलोगे आई हैव 2 ब्रदर इन लॉज, लॉज प्लूरल है तो ये सेंटेंस करेक्ट है. नो, सेंटेंस में एरर है, लॉज में एरर लग के प्लूरल नहीं बनेगा. यहां पे अगर नंबर दिया है मतलब प्लूरल है तो एस यहां पे चाहिए. आई हैव 2 ब्रदर्स इन लॉ. ओके, अब इसी पर एक और सेंटेंस. दिस is my brother in law's car. This is my brother in law's car. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? yes or no? yes, this sentence is correct because जो ये s लगा है ये s एपोस्ट्रोफी कॉमा के साथ होना चाहिए. बट एग्जाम में आपको वो एपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं देंगे टू कंफ्यूज यू. दिस इज पोजेसिव केस. हम इसके बात करेंगे. पोजेसिव केस ऑफ नाउन. पोजेसिव केस मालिकाना अधिकार.
दिस इज राहुल्स पेन, ये पेन राहुल का है। तो जिस भी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लग गया वो पोजेसिव नाउन बन जाएगा। ब्रदर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, मीन्स ये पोजेसिव नाउन बन गया, मीन्स उसके बाद आने वाले नाउन पर उसका मालिकाना अधिकार है, उसका पोजेशन है। दिस इज माई ब्रदर इन लॉज कार, ये मेरे ब्रदर इन लॉ की कार है। ठीक है, तो ये सेंटेंस दोनों तरीके से आ सकता है, आपको एरर यहां भी पूछ सकते हैं, आपको एरर यहां भी पूछ सकते हैं, और आपको दोनों ही टाइप से सेंटेंस को समझना पड़ेगा। ओके, आपको एस प्लूरल के फॉर्म में भी समझना पड़ेगा, आपको एस एपोस्ट्रोफी एस के फॉर्म में भी समझना पड़ेगा। क्लियर? एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेनेवर दे विल गिव दिस कंपाउंड नाउन इन द एग्जाम and they will use apostrophe s or possessive case, they will never use apostrophe comma। apostrophe comma है तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि possessive case है, बट वो apostrophe comma नहीं लगाएंगे to make you confuse कि ये s प्लूरल का लगा है कि ये s possessive noun का लगा है, तो वो समझना जरूरी है। ओके, now coming to the next, passer by। now what do you mean by passer by? पास साथ में पास होने वाले, आपके साथ रोड पे चलने वाले, जो साथ में चल रहे हैं। ओके, अब इसका प्लूरल बनेगा तो पासर्स बाय, एस पासर में लगाए। तो एज आई हैव टोल्ड यू, वेन एवर वी आर मेकिंग प्लूरल ऑफ कंपाउंड वर्ड, वी आर एडिंग एस ऑफ प्लूरल टू द बेस वर्ड, टू द रूट वर्ड। ओके, नाउ ऑन लुकर, ऑन लुकर मतलब देखने वाले, रोड पे कुछ भी हो रहा है, कुछ सीन हो रहा है तो देखने वाले। अब यहाँ पर अगर प्लूरल बनाना है तो ऑन लुकर का हो जाएगा ऑन लुकर्स। क्लियर? नाउ दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिस पर पेपर में एरर आता ही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में सिंगुलर प्लूरल हमने 3 वर्ड पहले किए, अब आगे कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ, इसमें रूट वर्ड क्या है? क्या चीफ रूट वर्ड है, इन रूट वर्ड है या कमांडर? इसमें रूट वर्ड है कमांडर, तो एस कहाँ लगेगा? कमांडर्स इन चीफ। क्लियर? मेड सर्वेंट हम कर चुके हैं, मेड सर्वेंट में रूट वर्ड है सर्वेंट, तो एस लगेगा मेड सर्वेंट्स। नाउ नेक्स्ट, स्टेप सन, सौतेला बेटा। स्टेप सन भी हो सकता है, स्टेप डॉटर भी हो सकता है, स्टेप फादर भी हो सकता है, स्टेप मदर भी हो सकता है। ओके, अब इसमें रूट वर्ड क्या है? सन, बेटा जो कि सौतेला है, तो प्लूरल कहाँ लगेगा? सन में, स्टेप सन्स। ओके, नाउ सी, मैन सर्वेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर इस टाइप के वर्ड आए, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, तो दोनों में ही प्लूरल बनाना पड़ेगा। दिस इज अ रूल। क्लियर? तो ये ट्रिकी चीज है, इनको याद रखना। मैन को भी प्लूरल करना पड़ेगा, सर्वेंट को भी प्लूरल करना पड़ेगा, आप एक को प्लूरल करके नहीं चल सकता। ओके, तो जिस भी नाउन से पहले मैन या वुमेन आ गया तो वहां पर दोनों ही नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। तो जो जो ट्रिकी थिंग्स हैं वो मैंने इसलिए अलग से बताई हैं कि इस पर एग्जाम में एरर आता ही है, पूछा ही जाता है। ओके, नाउ हाउस वाइफ, वी हैव डन, रूट वर्ड है वाइफ, तो यहाँ बनेगा हाउस वाइफ। ओके, नाउ टूथ ब्रश, रूट वर्ड है ब्रश जिससे टूथ साफ किए जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टूथ ब्रशेस। क्लियर? तो आपको ऐसे ही ये पूरा चार्ट अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। ये बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चार्ट एंड हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन। ओके, लेट्स सी सम मोर। नाउ सी सम ऑफ मोर एग्जांपल्स फॉर द कंपाउंड नाउन जेंटलमैन। अब यहाँ पर प्लूरल कहाँ लगेगा? मैन में, इट विल बिकम जेंटलमैन। ओके, नाउ वुमेन डॉक्टर। मैंने अभी अभी आपको बताया किसी भी नाउन के पहले अगर मैन या वुमेन वर्ड आता है तो दोनों ही वर्ड्स को प्लूरल चेंज करना पड़ेगा। सी, विमेन डॉक्टर्स। नाउ सी द प्रोनाउंसिएशन, वुमेन विमेन, इट्स नॉट वुमेन, इट्स विमेन एंड वुमेन। ओके, मैन मेन, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। क्लियर? नाउ द लास्ट, स्पूनफुल। स्पूनफुल मतलब चम्मच भर के, स्पूनफुल। नाउ इसका आप
स्पूनफुल का स्पूनफुल भी लिख सकते हैं, स्पूनफुल्स भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है. बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. आप स्पूनफुल का स्पूनफुल भी यूज कर सकते हैं और स्पूनफुल्स भी यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द चार्ट for making the plural of compound nouns, ki how to make compound nouns in plural form. And if you have understood this criteria of making the plural of compound noun, you will be having an easy command on understanding the rules and error based on the usage of compound noun. Okay, so in the next lecture I'll be teaching you the rules and the errors of compound noun. Till then you have to study this. और अभी खत्म नहीं हुआ. The surprise is still there. So just wait for the surprise. So students, again I am back with the new way of saying the old word. Now today's word is yes. 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 Today's word is yes. So how to say yes in different styles? So you can say of course. You can say definitely. You can say no problem. You can say certainly. You can say why not. You can say indeed. You can say I would love to. You can say undoubtedly. You can say yes, of course. You can say why not. So these are the different words to replace yes in the new and creative way. So as you all know, your feedback is a booster for me. So if you want from me some more videos, just give your feedback on my videos so that I can be boosted up to make new videos. Okay, so just use exactly, just use surely in the feedback to give me the feedback to say yes, surely, exactly, no problem. To use these words in the feedback. Stay tuned. Thank you.